আমার আন্দামান ভ্রমণের এই পর্বে আমি এখন দেখাবো আন্দামানের সেই কুখ্যাত সেলুলার জেল, যেখানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিপ্লবীদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো কালাপানি। সেই কুখ্যাত সেলুলার জেল আমরা এখন দেখতে চলেছি। এখানে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদেরও বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেই সময়, এবং কিছু ফাঁসিও দেওয়া হয়েছিল ওখানকার। আমরা এখন ভেতরের ছবি দেখতে চলেছি, আপনারাও দেখুন। এরশাদ কোথায়? ওই যে ওখানে। এটা হচ্ছে মিউজিয়ামের ভেতরে অনেক ডিসপ্লে রয়েছে বড় বড় বিপ্লবীদের, তাদের জীবনী, তাদের ছবি, তাদের কোন ঘটনায় গ্রেপ্তার করে এখানে পাঠানো হয়েছিল সেই সব এখানে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে, এবং আমরা পড়েওছি বেশ কিছু। Political prisoners of the cellular jail. Political prisoners of cellular jail. Vinayak Damodar Savarkar, Jaydev Kapoor, Hotilal Bharma, কি দত্ত, বটুকেশ্বর দত্ত, বাবু রাম হরি, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, আরও কি সব নাম আছে, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ মাথুর, বঙ্গেশ্বর রায়, নন্দগোপাল চোপড়া। এটা কি লেখা আছে? ডক্টর গয়া প্রসাদ কাটিয়ার, পণ্ডিত পরমানন্দ। হরর্স অফ সেলুলার জেল, হরর্স অফ সেলুলার জেল। এই যে ফাটান দিচ্ছে, হ্যাঁ, মেরে ভূত করে দিচ্ছে। চলো 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 চলো। ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য সেলুলার জেল, ডেভিড ব্যারি, দ্য ড্রেডেড জেলার। ডেভিড ব্যারি, ভয়ানক জেলার। উল্লাসকর দত্ত, সাভারকর, স্টোরি অফ প্রিজন লাইফ। Autobiography of Barindra Kumar Ghosh. The next morning we came out, washed our faces, and then had the first time of darshan of Ganji. Other is called Kanji. अच्छा, story of the prison. Extract from autobiography of Vinayak Damodar Savarkar. এই সেই সাভারকর। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দি জীবন, সচ্চিদানন্দ সান্যাল, উল্লাসকর দত্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি আমি। ইউএন ব্যানার্জি। 32-38। পৃথ্বী সিং আজাদ।
Japanese occupation of the island 1942-45. जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ द आइलैंड 42 के दौरान जापानियों का अधिकार ऑक्युपाइड द अंडमान एंड निकोबार ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। अच्छा, नेताजी के देखते पाওয়া যাচ্ছে, এই যে নেতাজিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ভিজিট অফ নেতাজি সুভাষ বোস টু পোর্ট ব্লেয়ার অ্যাজ সুপ্রিম কমান্ডার অফ আইএনএ, হেড অফ দ্য স্টেট প্রফেশনাল গভর্নর আজাদ 29 to 31 ডিসেম্বর 1943। তার মানে আন্দামান ভারতের আগে স্বাধীন হয়ে গেছিল, আন্দামান ভারতের আগেই স্বাধীন হয়ে গেছিল। আচ্ছা, এই তো নেতাজি তো ছবিতে ভর্তি তো। নেতাজি ভিজিট টু দ্য সেলুলার জেল, नेताजी सेलुलर के बाहर आते हैं। अंडमान समुद्र पर नेताजी। কোথায় কোথায়? ওই যে এন্ট্রিটা, ওই যে এন্ট্রি ঢুকলাম। এটা হচ্ছে আন্দামান সেলুলার জেলের মডেল নকশা। মাঝখানে ওয়াচ টাওয়ার, ওই ওয়াচ টাওয়ারে আমরা উঠব, একটু পরেই আমরা ওই ওয়াচ টাওয়ারটার উপরে উঠে পুরোটা দেখতে পাবো। চলো। सबको बाहर जाए। कितना लोग? দেখতে পাবো না তো, শোটা এখানে হবে। কোনো সিট নাম্বার দেওয়া আছে কি? সব সিট নাম্বার দেওয়া আছে। এই তো গাইড। আজ আমি টাইম ওটা। এই যে আমরা যেখানে বসে আছি, এখানে বসে সন্ধ্যের পরে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের একটা ভীষণ দেশাত্মবোধক একটা ছবি দেখানো হয় দেওয়ালগুলোর উপরে ফুটে ওঠে, যেন বন্দিরা ওই ঘরের মধ্যে বসে আছে, তাদেরকে কীভাবে কী কী শাস্তি দেওয়া হয় সেগুলো দেখানো হয়, এবং সেগুলো দেখতে দেখতে মন খারাপ হয়ে যায় রীতিমতো। তখন মনে হয় যে ইংরেজরা যে কী অত্যাচার করে গেছে আমাদের দেশের উপরে তা কহতব্য নয়। आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। फिर पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी है। अब यदि कोई कैदी भागे तो कहां तक भागेंगे? आसपास के जंगलों में। वहां जाते थे, आदिवासी देखते थे, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी हो गया काला पानी, तो लोग ये सोचने लगे कि ब्लैक वाटर है, लेकिन इसका ब्लैक से कोई मतलब नहीं। अंडमान में प्रिजनर को भेजना शुरू किया था अंग्रेजों ने 10 मार्च 1858 से। तब उन लोगों को रखने के लिए सेपरेट आइलैंड था और उस आइलैंड का नाम था वाइपर, जो एक शिप के नाम पे रखा गया। इस डायरेक्शन में समुद्र के बीच छोटा सा आइलैंड। बाद में जेल वहीं पे बना 1867 में जेल बन गया, लेकिन वो जेल इस जेल के जैसा बड़ा जेल नहीं था, छोटा जेल था। और आज वहाँ बचा है फांसी घर, गार्ड रूम, बाकी वहाँ सब टूटा हुआ है। और उसी फांसी घर में फांसी दिया गया था शेर अली जी को। शेर अली जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का पठान था। मर्डर केस में अंडमान आया था, सजा में छूट मिलने के बाद होप टाउन एक विलेज है इस डायरेक्शन में, वहाँ पे शेर अली जी बार शॉप चला रहा था। 8 फरवरी 1872 अंडमान ने विजिट के लिए आया हुआ था गवर्नर जनरल
कैपिटल ऑफ इंडिया। नाम था लॉर्ड मेयो, उस समय का वाइस राय था इंडिया का। तो शेर अली जी ने होप टाउन को चाकू से मार दिया। लॉर्ड मेयो का डेथ हो गया। शेर अली जी को पकड़ लिया और उनको 11 मार्च 1872 वाइपर आइलैंड के फांसी घर में फांसी पे चढ़ा दिया। यदि आज आप लोग जाते वाइपर आइलैंड घूमने तो वो फांसी घर देखने को मिलता जहाँ पे शेर अली जी को हैंग किया था। तो हम शुरुआत करेंगे सेलुलर जेल के फांसी घर से। सभी के साथ गाइड मैं ही रहूंगा। यहाँ से आगे जो मुझे फॉलो करना चाहे आगे फैमिली वाइज पे करके आगे को आ सकते हैं। और दोनों है ओरिजिनल कमरा। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन हुआ करता था, उनका खाना बनता था यहीं पे, अब बन गया ऑफिस। तो इसके अंदर पहले का कुछ भी नहीं। इसके आगे है फांसी घर। फांसी घर जो है अंग्रेजों के समय में खुला था, खुले में फांसी देते थे। पूरा कमरा जो नया बना दिया। ऊपर लकड़े का एक बीम है, ओरिजिनल है। नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है। रस्सी जो है बदल दिया। 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था भी था। ऊपर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म दरवाजे जैसा नीचे को खुलेगा। नीचे जो है 8 फीट गहरा कमरा है। कैदी झूल जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाते थे। पीछे लोहे का गेट है, उसमें अभी हम लोगों ने इमरजेंसी एग्जिट लिखा है। ओरिजिनल गेट उस जमाने का है, उस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। लेकिन सेलुलर जेल के फांसी घर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण या रिकॉर्ड्स नहीं, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को भी अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे मैक्सिमम आते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास वाले फ्रीडम फाइटर। फिर आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से भी डेथ हुआ था, खाना खिलाना उसमें भी डेथ हुआ था। और एक केस भी था इंदुभूषण रॉय जी का। तो जबरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब फ्रीडम फाइटर भूख हड़ताल करते थे। उनका भूख हड़ताल तोड़ना है, पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके जबरन नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का मांड और मिल्क। अब उस वजह से जो है 10 दिन के भीतर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ भी हुआ था 1933 में। नाम था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी। यहाँ फांसी उन्हीं को दिया। दंडवान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा, उसके बाद फैसला होगा फांसी दो, तब यहाँ पे फांसी देते थे। तो सेलुलर जेल के फांसी घर में कितने लोगों को फांसी दिया गया इसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं। पहले आप लोग ऊपर चढ़ेंगे, रस्ते वगैरह देखेंगे, फिर नीचे को उतरेंगे सीढ़ी। और अंडरग्राउंड जो कमरा है 8 फीट, तो बाहर से देखिए क्योंकि कंजेस्टेड रूम है, सफोकेशन हो जाएगा, तो जस्ट बाहर से देखना है। फिर सामने मैंगो का ट्री है, सभी लोग वहीं पे बाहर असेंबल होंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेन वहीं पे होगा। तो फांसी घर का ऊपर मेन है देखने का, नीचे का जो अंडरग्राउंड है केवल एक रूम है। तो बाहर से सभी लोग अंदर चला जाता है, सफोकेशन हो जाएगा, समय काफी ज्यादा लग जाएगा। तो उसकी वजह से देख करके ये से वापस आ जाए मेन सेलुलर जेल में। ऐसे जो बिल्डिंग थे 7 बिल्डिंग्स में कुल मिलाकर के कमरे थे 693 कमरे थे और सभी थे एक जैसे ही कमरे। लेकिन इस बिल्डिंग का नीचे का 4 कमरा, इसको जो है अंग्रेजों ने अलग करके रखा था। इस कमरे को बोलते हैं तिरस्कृत कोठरी, कंडेम्ड सेल। फांसी पाने वाले प्रिजनर को रखने के लिए वो कमरा है और उनको तब तक रखते थे जब तक उनका डेट फिक्स नहीं होता। और जिस दिन फांसी का डेट फिक्स हो गया, पीछे छोटा सा प्लेटफॉर्म व्हाइट कलर का है, तो प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, सीढ़ी नुमा। तो प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है। सवेरे फांसी वाले दिन वहीं लाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, आखिरी इच्छा पूछा जाता था, उसके बाद इनको फांसी पे चढ़ाते थे। और इस जेल का नाम सेलुलर जेल किस वजह से रखा गया? कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज रहता है, डॉर्मेटरी। 8-10 लोगों को रखने जैसा सेल होगा, अंडर सेल जैसा सेल होगा, हाइट कम वाला सेल, लाइट कम वाला सेल, टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस सब रहेगा। लेकिन इस जेल में किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं, सभी सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स को कमरे में ही काम देते थे, अकेले काम करो। अकेले क्या काम करेंगे? नारियल के छिलके से रस्सी बनाएंगे या केन वर्क, बेंच का कुर्सी बनाने का काम होगा। उनके लिए सिस्टम ये था, दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसमें ही जाना है। शाम 6 बजे से सवेरे 6 सभी रहेंगे लॉकअप में बंद, अंदर कोई टॉयलेट नहीं। सभी को मिलेगा मिट्टी का पॉट, जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो और अगले दिन स्वीपर आएगा साफ करके बाहर ले जाएगा। खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट दिया जाता था जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी दिन में 2 बार ही मिलता था लोहे के बर्तन में, वो भी साफ नहीं। तो रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं, अंधेरे में ही रहते थे। हरिकन लैंप हाथ में ले सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहेगा।
और सोने के लिए सभी को लकड़ी का बेड मिलता था। बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना होगा, लंबाई करीब 6.5 फीट। एक बेड एक कंबल सभी को मिलता था और एक सेल में एक फ्रीडम फाइटर को ही रखते थे। अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, षड्यंत्र ना रचे। कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट। रूम जो है बड़ा है। सामने डोर होगा, पीछे एक वेंटिलेशन होगा। हर रूम का सेम ऐसा सिस्टम था। अभी आप लोग जाएंगे बेहतर फैक्ट्री, जहाँ पे पहला जो कोलो दिखेगा ओरिजिनल कोलो है, नारियल तेल निकालने का एक्सपेरिमेंट बाहर करेंगे। उसके बाद दिखेगा नारियल के छिलके से रस्सी बनाने का काम। उसके आगे फ्रेम के साथ स्टैचू रहेगा, जो अंदर फ्रेम है ओरिजिनल फ्रेम है, फ्लॉगिंग फ्रेम। उसके आगे क्रांतिकारियों का यूनिफॉर्म मिलेगा, चेन फिटर, बार फिटर, क्रॉस बार फिटर मिलेगा। जस्ट फोटोग्राफी करके राइट साइड को आना है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट बाहर करेंगे। आप लोग जाना भीतर, फोटोग्राफी करके बाहर आना है, एक्सपेरिमेंट जो बाहर करेंगे। ध्यान से जाएगा भीतर फैक्ट्री का। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को जेल से बाहर भी ले जाते थे। जंगल साफ करना है, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान ये काम भी होता था। कुछ क्रांतिकारी सेल के अंदर भी काम करते थे। और कुछ आजादी के काफी साल के बाद 1964 जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहा था, खराब हो गया, वहां पे एक हॉस्पिटल बना दिया। छोटा हॉस्पिटल था, वो बनते बनते आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। उस हॉस्पिटल का नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे रखा गया। इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था, उनका नाम था मैक्लेन, और इस जेल का अत्याचारी जेलर का नाम था डेविड पैरी। डेविड पैरी थे आयरलैंड के रहने वाले। उनका समय रहा अंडमान में 1905 से लेकर 1919। उसके बाद उनका तबियत बिगड़ गया, उनको शिप में चढ़ा करके कलकत्ता पहुंचा दिया। कलकत्ता पहुंचने के साथ ही डेविड पैरी का भी डेथ हो गया। तो इस वजह से उनके बारे में कहा जाता है, वतन परस्तों को अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी अपने वतन का मुंह न देख पाया। अब आगे पूछिए। हाँ, उसको 4 मिनट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। उसका तो ऊपर चलेंगे, वहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन नहीं होगा। आप बताने का सब ये होगा। कमरा गार्ड का, बाकी सब सेम कमरे हैं। आखिरी कमरा स्वतंत्र वीर सावरकर जी का। देखिए उसी रास्ते से लौटेंगे। बिल्डिंग से टावर जाने के लिए बीच में ऐसे लकड़ी का कनेक्शन है। ये कनेक्शन भी अंग्रेजों के समय में टेम्पररी था। जब अंग्रेज जाते थे टावर लकड़ी का प्लैंक डालते थे, बाद में उसको रिमूव करते थे ताकि फ्रीडम फाइटर टावर जा ना पाए। अब इसे परमानेंटली फिक्स कर दिया। 3 ब्लॉक्स बन गए, 1 है, 7 है, पीछे है 6। इस तरफ का 4 फ्लोर के वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल दिखेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब कुछ वहाँ पर फ्री सर्विस है। क्रांतिकारियों का लिस्ट भी वहीं पे लगा है। उसके बाद 15 स्टेप्स चढ़ जाएंगे, लकड़ी का सीढ़ी है, पहुंच जाएंगे 3rd फ्लोर। समुद्र का नजारा देखने को मिलेगा। उस समय जिनके पास बच्चे हैं, बच्चों का हाथ वहाँ पे बिल्कुल भी ना छोड़े, खुला छत है, गिरने का डर है। और बड़े लोग भी कोई भी साइड में बैठ करके फोटोग्राफी ना करे, काफी डेंजर प्लेस है। नजारा बढ़िया है। सामने छोटा सा आइलैंड दिखेगा, रेड कलर का बिल्डिंग काफी सारे होंगे। नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, पुराना नाम रॉस, अंग्रेजों का कैपिटल था अंडमान का। पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था। इतना डेवलपमेंट सब कुछ खराब हो गया। चलो चल रहा कितना रश है। अरे जोर पर बैग में बैठे और फिर कंफर्ट भी दिमाग
এখানে খুলতে পারবে এটা ভাই এখানে তালা খুলতে পারবে এইখানে তালা খুলতে পারবে চাবি ফেলেও খুলতে পারবে হ্যাঁ এইখানে চাবি মারা হবে ওখানে তালা ফেলেও খুলতে পারবে না এইখানে তালা হ্যাঁ ওই দিক থেকে আসছে খেল ঠেল দে খেল ইস, ভেঙে যাবে স্পেশাল চলো কি হয়েছে তোমার জেল থেকে ছুটি হয়ে গেছে চলেছো We are in my camera. কোথা থেকে এসছেন? কলকাতা? না পুনা হ্যাঁ? পুনা পুনা পুনা, বিউটিফুল সিটি। ও এটাই সেই ওয়াচ টাওয়ার, যতগুলো ব্রাঞ্চ বেরিয়ে গেছে স্টারের মতো, তার মাঝখানে এইটা হচ্ছে জেলের মেন ওয়াচ টাওয়ার। আমরা তার উপরে উঠে গেছি। একটা কথা বলে রাখি, গাইড বলছিলেন যে যেসব বন্দীদের নির্বাসন শাস্তি টাইমটা শেষ হয়ে গেছে, তারা মুক্তি পাওয়ার পরেও কিন্তু নিজেদের দেশে ফেরত পাঠায়নি তখনকার গভর্নমেন্ট। তাদেরকে আন্দামানেরই বাসিন্দা করে দেওয়া হয়েছে, সেখানেই তাদের বসত করে দেওয়া হয়েছিল। এবং বর্তমান আন্দামানবাসীদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ এই সেলুলার জেলে শাস্তি পেয়ে, নির্বাসন শাস্তি যাই বলুন না কেন, সেইটা এখানে ভোগ করে তারপরে মুক্তি পাওয়ার পরে এই আন্দামানের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল।